નમસ્કાર મિત્રો, સત્ય ખબર ગુજરાતમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। કરમસદ ખાતે આયોજિત સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ગાંધીનગર દ્વારા કરમસદ દર્શન હોટલ ખાતે બિનનિવાસી ભારતીય ખાતેદારોનો સ્નેહ સંમેલન યોજવામાં આવ્યું હતું। સંગીત સંધ્યા સાથે આ ભવ્ય આયોજનમાં સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ગુજરાત ઝોનલ હેડ કવિતા ઠાકુરની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં બેંક સાથે જોડાયેલા એનઆરઆઈ મિત્રોનું ખાસ અભિવાદન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। આ પ્રસંગે તેમણે પ્રસંગોચિત ઉદ્બોધનમાં સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની વિવિધ ઉપલબ્ધિઓ વર્ણવી હતી અને તેમાં એનઆરઆઈ મિત્રોના યોગદાન વિશે જણાવ્યું હતું કે ચંદીગઢની જેમ ચરોતર પ્રદેશ એ પણ એનઆરઆઈ હબ છે। આ ઉપરાંત સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની વિવિધ એનઆરઆઈ પ્રોડક્ટ વિશે તેઓએ વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિઝન પ્રમાણે આગામી 2047માં ભારત દેશ દુનિયામાં સર્વોપરી રહેશે અને ખૂબ મોટું રોજગાર આપતું દેશ બની રહેશે। આ પ્રસંગે અમદાવાદ રિજિયોનલ હેડ મેનેજર ચંદન ઝા દ્વારા ગ્રાહકોના પ્રશ્નો અને તેના નિરાકરણ અંગેની ખાતરી આપી હતી અને બેંકની તમામ શાખાઓમાં વિદેશી મુદ્રામાં થાપણ રાખવા અંગે સૌને માહિતગાર કર્યા હતા। બેંક પ્રતિનિધિઓમાં આ કાર્યક્રમમાં આણંદ મુખ્ય શાખાના મેનેજર મુકેશ ખરે દ્વારા આભાર વિધિ કરાઈ હતી અને આણંદ જિલ્લાની 32 શાખા અને નડિયાદ ખેડાની 4 શાખાઓમાંના 250 ઉપરાંત એનઆરઆઈ ગ્રાહકોનો વિશેષ આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો। આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા અમદાવાદ રિજિયોનલ હેડ ડૉક્ટર હિમાંશુ ગુપ્તા અને ગાંધીનગર રિજિયોનલ હેડ ચંદન ઝા તેમજ આણંદ મુખ્ય શાખાના મેનેજર મુકેશ ખરે, નીરજ કુમાર અને ખેતીવાડી શાખાના મેનેજર વિકાસ શરણ તેમજ વિશેષ સહયોગમાં સ્ટાફ મિત્રો જયેશભાઈ ભટ્ટ, અંકિતભાઈ દરજી અને સભા સંચાલન તરીકે સિમી વસાવાએ અને તમામ શાખા મેનેજરોના સફળ સંચાલનને પાર પાડ્યું હતું। It's a fully repatriable tax-free deposit. Its existence. So, the history of the in NRI case. So, what are the facilities for the NRI? Joint account with the residents, with the close relatives, with the former and survivor benefits. ऑफिस તમારી સિગ્નેચર ના હોય તમે તમારી કોઈ બી નિજી વિગતો કોઈ બીજાને આપી શકતા નથી। and 5 years only is a 4.50. So आप દરેક મારી ઈચ્છા એવી છે કે દરેક એનઆરઆઈ આ દરેક બેનિફિટ્સ ઉઠાવે અને પોતપોતાનો ફંડ બી સિક્યોર કરે। વી હેવ અનંત પટેલ એફસીએનઆર ડીમાર્ટ ઠાकुर मैडम, हमारे रीजनल हेड अहमदाबाद डॉक्टर हिमांशु गुप्ता सर, सभी सम्माननीय एनआरआई कस्टमर्स एंड सेंट्रलाइट फैमिली के सभी सदस्य, हमें अपार खुशी है कि आज हम लोग एनआरआई मीट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, तो अभी जब मैं यहाँ बैठी हुई थी तो पुराने 11-12 साल पुराना अपना टेन्योर याद कर रही थी चंडीगढ़ का, क्योंकि चंडीगढ़ में मैक्सिमम एनआरआईज है। मैक्सिमम एनआरआईज जो है वो मेरे बड़े क्लोज सोशल सर्कल में रहे हैं हमेशा। तो 1-2 इंस्टांस मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। उसमें एक सरदार गुरबख्श सिंह काबरवाल जी मेरे कस्टमर हुआ करते थे। जब वो मेरे से एसोसिएट हुए तो ही वॉज 91 ईयर्स ओल्ड। ही रिटायर्ड एज आरबीआई डायरेक्टर। तो फॉरेन में मतलब थोड़ा एडवांसमेंट इंडिया से ज़्यादा था उस समय, और भी ये 40 साल पुरानी बात है। उस समय ग्रीन कार्ड भी यूएस में बड़ी इजीली मिल जाता था, अभी जो बहुत मुश्किल हो गया है। तो उनके बच्चे ऐसे करके यूएस चले गए, फिर एक ब्रदर गया तो दूसरे को फैमिली मेम्बर्स को बुला लेते थे। तो ही रिटायर्ड एज आरबीआई डायरेक्टर। तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों के पास चले गए। 91 ईयर्स के थे जब वो इंडिया में उनकी 1000 स्क्वायर यार्ड का एक बेंगलो था, उसको वो हमारे जो लोकल सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं उसको हम सिर्फ एनआरओ में जमा करा सकते हैं, क्योंकि एनआरओ अकाउंट में आप इंडियन रूपी भी जमा कर सकते हैं और फॉरेन करेंसी भी जमा कर सकते हैं, इसीलिए वो अकाउंट टैक्सेबल अकाउंट है। और बाकी दोनों अकाउंट में क्योंकि फॉरेन रेमिटेंस आती है दैट इज़ गुड फॉर अस, इसलिए उसको हमने टैक्स फ्री रखा है। लोन फैसिलिटी सब में अलाउड है। दैन उसके बाद आप
आजकल इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स ए डेवलप्ड नेशन। 2000 अभी कल परसों मेरी अपने फैमिली मेंबर में किसी से बात हो रही थी, मेरी अपनी ट्विन डॉटर्स है, वो दोनों यूएस में सेटल्ड हैं। तो किसी से बात हो रही थी तो बोले कि 2047 के बाद इंडिया के बच्चों को यूएस कमाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इंडिया विल बी ए परफेक्टली डेवलप्ड नेशन। तो हम सबके लिए ये बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से हैं और उनका एक सपना है कि 2047 में हमारा देश एक पूरी डेवलप्ड नेशन हो। अभी हमने वाइब्रेंट गुजरात का कार्यक्रम था लास्ट वीक, तो उन्होंने सभी कॉरपोरेट वर्ल्ड के बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया हुआ था और वो खुद भी थे। और ये बात हम सब ने महसूस की है, जो चीज़ वो सोच लेते हैं, डिटरमिन कर लेते हैं, वो उसको पूरा करके दिखाते हैं। इवन हाउसिंग लोन में ही आप देखो सब लोग इंडिया में इन्वेस्ट मैक्सिमम कर रहे हैं, बिकॉज उनको एक फ्यूचर इंडिया में नजर आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा उनसे एसोसिएशन हो गया। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी कस्टमर हाउसिंग लोन स्कीम हमारे बैंक की बेस्ट है। हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, रादर सबसे लोएस्ट है। ऑन द अदर एंड FCNR पे अभी कल परसों हमारे बैंक ने ये हाईएस्ट रेट इन द बैंकिंग इंडस्ट्री अनाउंस किया है, इट इज 5। और मैं स्टार्ट करने से पहले आप सबको बताना चाहूँगा कि आप सभी एक सेंट्रलाइट फैमिलीज की तरह हमारे बैंक से जुड़े हुए हैं और उसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी इतने लार्ज नंबर में आज इस NRI मीट में उपस्थित हुए। और हमारे शाखा प्रबंधक जो आपके साथ कंपनी कर रहे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि वो इस मीट में आप लोगों के साथ आपके साथ आए और आप लोगों ने लार्ज नंबर में यहाँ पे गैदर किया। इधर मैडम ये अपना बैंक दिखना चाहिए बस। बरो Thank you so much, Pinaki Bhai. Chinna please come forward. मेरा नाम कविता ठाकुर है। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अहमदाबाद में अंचल प्रमुख के रूप में कार्यरत हूँ। आज हमने यहाँ पर अपने NRI कस्टमर्स के लिए NRI मीट रखा, जो कि हम हर साल जिसका आयोजन करते हैं, जिसमें 250 से अधिक NRI कस्टमर आज हमारे इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने बैंक में आने वाली अपनी समस्याओं को हमारे साथ डिस्कस किया और हमने उनको उनका निवारण भी बताया। आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज सभी कस्टमर्स हमारे बैंक से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और हमें अच्छा डिपॉजिट मिलने की संभावना है। इसके साथ ही हमने उनको अपनी सारी ऋण की योजनाओं को भी बताया। हाउसिंग लोन स्कीम्स, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कॉम्पिटिटिव है, ये हमने सभी ग्राहकों को बताया और काफ़ी ग्राहक उसके लिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी इच्छुक दिखाई दिए। થઈ ગયું